Hello students, we are doing lesson number 7, that is importance of water. And till now we have discussed that how water is essential for all living beings and importance of water for animal. All animals drink water and they need it to digest their food, and also the some waste materials that are produced by the body of the animals are get dissolved in water and are excreted in the form of urine. And water is a habitat for many types of animals also. Then we have discussed about the importance of water for plants. So plants require nutrients for their growth, and these nutrients get dissolved in water present in the soil, and plants absorb water from the soil with the help of their roots, and this absorbed water transports the nutrients to the various part of the plant. सारे parts जो plants के होते हैं वहां तक उनको nutrients को पहुंचा देता है कौन? Water. And plants also need water for preparing their own food. So you know that plants prepare their food, so they need water to prepare their food, that is for the process of photosynthesis. And plant require water for germination of seeds. कि seeds germination के लिए भी water required होता है, and water is a habitat for many types of plants also. Now today we will discuss about the water availability in nature, कि कितना water available है इस nature में, that we will discuss it. So in previous class we have learned that about 3/4 of the surface of earth is covered with water, कि कितना surface है जो earth का वो water से covered है. So we have already learned and I have already explained you. Suppose this is the earth, ये हमारी पूरी earth है, and we have already done the fractions. fraction कैसा होता है? So how can we write 3/4? 3/4 को अगर मैं पिक्चर फॉर्म में अगर आपको शो करूं तो this is, that means 3/4. 3/4 means 3/4. So I have divided the earth into 4 parts, और 4 part में से 3/4 means this is 1 part, this is 2 part, and this is 3 part. So 3/4 part is shaded. So this much part of earth is covered with water. हमारे अर्थ पे जितना ये मैंने शेड किया है इतना वाटर है, तो यू कैन इमेजिन दैट कितना वाटर है इस अर्थ पे. और जो ये दिस इज द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज 1/4. दिस पार्ट इज लैंड. इतना पार्ट जो है हमारा लैंड है. तो हमारे अर्थ पे तो कितना सारा पानी है, ज्यादा पानी है, और जो खाली लैंड है वो कम है. सो however, only a very small percentage, about 3% of it is practically used by humans in their daily life. So we have already studied in class 4 कि जो ये इतना सारा water है इसमें से सिर्फ 3% water, इसमें से सिर्फ 3% water जो है, बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा water जो है वो हमारा जो हमारे लिए अवेलेबल है, जो हमारे डेली यूज के लिए, डेली लाइफ के लिए हम ह्यूमंस यूज करते हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशंस एंड सीज, और दैट वाटर इज अ सॉल्टी वाटर, एंड वी कांट यूज दैट वाटर, सॉल्टी वाटर. एंड द रिमेनिंग water, fresh water, is lot of water is also, fresh water is present in the form of snow, glaciers, उनकी फॉर्म में भी प्रेजेंट है. सो जो हमारे लिए अवेलेबल है दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट इज ओनली अबाउट 3% जो है हमारे लिए अवेलेबल है. नाउ द ग्राउंड वाटर. सो यू ऑल नो व्हाट इज ग्राउंड वाटर, द वाटर दैट इज प्रेजेंट below the earth surface, that is groundwater. So about 97% of water is present in seas and oceans.
that I have just told you that 90% जो water है वो हमारा sea और ocean में है, and the remaining 3% water is present in rivers, ponds, lakes, streams and glaciers. और जो fresh water है ये तो जितना भी 97% sea और oceans में है, that is a salt water and that is not we can't use that water because that is a salty water. और जो बचा हुआ 3% है, 100% में से 97% तो सॉल्ट वाटर हो गया, रिमेनिंग 3% वाटर कहाँ पर प्रेजेंट है? रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स जो मैंने अभी डिस्कस किया आपको, जो स्नो से कवर्ड माउंटेन्स होती हैं दैट आर ग्लेशियर्स. स्नो की फॉर्म में है बहुत सारा हमारा फ्रेश वाटर. अ स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस seeps into the ground and gets trapped between the underground rocks. This is called ground water. So थोड़ा सा जो पार्ट है वाटर का वो हमारा क्या हो जाता है? seeps down means वो जमीन के अंदर रच जाता है, चला जाता है और ट्रैप हो जाता है. जो जमीन के नीचे रॉक्स होती है उसके बीच में इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है. एंड जो वाटर जमीन के नीचे कलेक्टेड होता है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. सो ग्राउंड वाटर आपने देखा भी होगा कि जो ग्राउंड वाटर है हम उनको यूज़ करते हैं. बहुत सारे आपके घर के आसपास हैंड पंप्स होंगे. सो वहाँ उन हैंड पंप्स में वाटर कहाँ से आता है? सो यू नो दैट हम अर्थ के अंदर काफ़ी ड्रिल करते हैं, उसके अंदर पाइप्स लगा देते हैं. जो ज़मीन के नीचे वाटर होता है उसको हम फिर लिफ्ट करते हैं थ्रू हैंड पंप्स और अदर मीन्स लाइक ट्यूबवेल, जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं उन सबसे हम लिफ्ट करते हैं. कौन सा वाटर होता है? वो ज़मीन के नीचे का ही तो वाटर होता है. दैट वाटर इज ग्राउंड वाटर. अर्लियर पीपल यूज टू fetch वाटर फॉर देयर डेली needs from rivers, lakes or wells. So you can see here in the picture also जो पहले के टाइम में जो लोग होते थे वो अपने डेली जो नीड्स होती है वो कैसे फुलफिल करते थे? दे टेक द वाटर फ्रॉम द रिवर्स, लेक्स और वेल्स. Even now in many areas where there is no system of supplying water through pipes, people depend on natural sources of water like rivers or ponds. So आज भी आपके घर में वाटर तो घर पे ही आ जाता है थ्रू पाइप्स, टैप्स आपके घर में अवेलेबल होता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट देयर आर सम एरियाज जहाँ पर अभी भी वाटर की जो सप्लाई होती है वो पाइप्स के थ्रू नहीं होती है, उनके घर में वाटर नहीं पहुँचता है. एंड those people still depend on natural sources. Natural sources means जो ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाए हैं, उन नेचुरल सोर्सेज पे वो अभी भी डिपेंड करते हैं बिकॉज उनके घर में वाटर नहीं पहुंचता थ्रू पाइप्स जैसा आपके घरों में पहुंचता है. सो उनको रिवर से, पॉन्ड से, लेक से वाटर लेकर आना पड़ता है अपने घरों तक एंड देन दे use that water for their daily needs. So still there are many places जहाँ पर ऐसा होता है. So in next video we will discuss about the ways of drawing out ground water. जो हमने ground water अभी डिस्कस किया है that is जो water हमारे अर्थ सरफेस के नीचे है और कलेक्ट हुआ है रॉक्स के बीच में. उस ग्राउंड वाटर को हम कैसे ऊपर लेकर आते हैं अपने डेली यूज़ के लिए, उसको हम यूज़ करते हैं और हम कहाँ पर उनको यूज़ कर सकते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट द वेज ऑफ ड्राइंग आउट ग्राउंड वाटर एंड ऑल्सो हाउ वाटर गेट्स सप्लाई एट आवर होम्स. कि आपके घर में जो पानी पहुंचता है थ्रू पाइप्स आपके घरों में आता है, डेली आता है, वो कैसे पहुंचता है आपके घरों में, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.